other two mechanisms. The first one is the mutex. Mutex stands for mutual exclusion. MUT stands for mutual, EX stands for exclusion. And the previous solutions which we have discussed so far, अभी तक हमने जो भी देखे थे algorithm 1 2 3 जो भी थे, they were basically not used for the programmers. What the OS designers, they have designed a software tool to solve the critical section problem. OS designers have built the tool to solve the critical section problem, and the simplest is the mutex lock. Now this type of mutex lock can be used for any number of processes. Process who wants to enter the critical section, it first acquire the lock, and then when the usage is done, when the critical section part has been executed, then the release of the lock takes place. वहां पर हमारा क्या हो रहा था, एंट्री सेक्शन था, क्रिटिकल सेक्शन था, रिलीज सेक्शन, एग्जिट सेक्शन था. यहाँ पर हमारा एक्वायर लॉक है, क्रिटिकल सेक्शन है और रिलीज लॉक है. बाद में हमारा रिमाइंडर ऑफ द सेक्शन है. यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्वायर का फंक्शन लिखा हुआ है. एक्वायर में आप क्या चेक कर रहे हो, एक एक्वायर बेसिकली एक्वायर है क्या, आप यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हो और बूलियन वेरिएबल जो है वो लॉक की तरह से बिहेव करता है, इंडिकेट करता है वेदर द लॉक इज अवेलेबल और नॉट. बट the calls to acquire and released must be atomic indivisible operation. ये एटॉमिक इंडिविजिबल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जब भी कंप्लीट होगा तो ये एक्वायर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, रिलीज होगा तो रिलीज भी पूरा का पूरा एक बार में एग्जीक्यूट होगा. एटॉमिक इंडिविजिबल ऑपरेशंस की मैं बात करती हूँ. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है दैट बिफोर द प्रोसेस एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन, इट विल एक्वायर द लॉक, इट विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, एग्जीक्यूट द कोड विच इज देयर इन द CS, एंड देन रिलीज द क्रिटिकल सेक्शन, रिलीज द लॉक. ये आपका मैंने आपको स्निपेट दिखाया था. एक्वायर द लॉक, enter the critical section, execute the code in the critical section and release the lock. Calls to acquire and release must be atomic, usually implemented via hardware using atomic instructions, but this solution is just like busy waiting. Busy waiting means क्या हो गया कि जो भी processes critical section में enter करना चाहती हैं वो busy wait करती रहती हैं, सारी की सारी processes continuously looping करती रहती हैं, check करती रहती हैं. So basically this is a spin lock situation in which the processes are wasting their CPU cycles and constantly looping on the lock to check its availability. Okay, let me read few lines from the book. The main disadvantage of the given implementation here is that it requires busy waiting. While a process is in the critical section, any other process that tries to enter the critical section must loop continuously in the call to acquire. ठीक है, एक्वायर के अंदर जो भी प्रोसेसेस CS में एंटर करना चाहती हैं वो सारी एक्वायर में ही चलती रहेंगी. ओके, और वो बिजी वेटिंग करेंगे. दिस इज नोन एज स्पिन लॉक बिकॉज द प्रोसेसेस आर स्पिनिंग और वेटिंग फॉर द लॉक टू बिकम अवेलेबल. दिस कंटिन्यूअस लूपिंग इज क्लियरली अ प्रॉब्लम इन रियल प्रोग्रामिंग सिस्टम्स. व्हाट आर रियल टाइम प्रोग्रामिंग सिस्टम्स? What are real-time programming systems? हाँ जी, anyone who wants to answer? Can I? कौन आंसर करना चाहेगा? Pallavi. Pallavi, okay, go ahead. So, ma'am, like as we have discussed that real-time programming system, ma'am, like program must guarantee response within a specified time constant. Like often we call like deadline. So, ma'am, it is like like
3 seconds, maybe I'm not sure about the seconds. It is like basically time constant is defined, and real time responses are basically often understood like to be in the order of milliseconds and like microseconds, we can say that. And system is not specified as operating in real time. And ma'am, basically in real time system, yes ma'am, it has been like it is like a control an environment by receiving data, processing them and returning the result sufficiently quickly to affect the like environment in that time. मुझे जब मैं पूछती हूँ ना, मुझे एक छोटा सा क्रिस्प आंसर दिया करो. Probably I am not interested in listening to so many stories. What are real time systems? Ma'am, it rapidly switches between tasks. Yes ma'am. Can anybody else go for chapter number 1? Look for real time systems towards the end, perhaps the last section or the second last section. Yes. Ma'am, it controls an environment by receiving data, processing them, and returning the results sufficiently quickly. Real-time systems are those systems which have rigid time constraints. That means within those time constraints, the operation should be executed and we should get the answer or the result. If it is taking too much time, then real-time systems will fail. कितनी बार तो ये रियल टाइम वर्ड यूज करके मैंने तुम्हें समझाया हुआ है. दैट मीन्स ऑफिस ऑटोमेशन की टेक्निक्स होती हैं, होम ऑटोमेशन की टेक्निक्स होती हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की टेक्निक्स होती हैं, वो सब रियल टाइम सिस्टम्स चल रहे होते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल ही लेके बताती हूँ. न्यूक्लियर रिएक्टर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, कोई एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हर चीज रियल टाइम में चल रही है. अगर बॉटल्स के ऊपर कैप लगनी है, बॉटल्स अगर देर से आ रही होंगी तो सारी कैप फॉल हो जाएंगी. कितने सारे आपने डिस्कवरी वगैरह में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के प्लांट्स देखे होंगे, तो वो सारे रियल टाइम ऑपरेशंस चल रहे होते हैं. अगर एक भी सेकंड का डिले होगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा. तो यहाँ पर भी यही है. अगर प्रोसेसेस जो हैं वो लॉक पे ही स्पिन, अगर एक लॉक को एक्वायर करने के लिए स्पिन लॉक चलता रहेगा, इफ दे आर स्पिनिंग अराउंड द लॉक, देन ऑब्वियसली द ऑपरेशन विल फेल. यहाँ पर यही लिखा हुआ है. द कंटिन्यूअस लूपिंग इज क्लियरली अ प्रॉब्लम इन रियल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम वेयर अ सिंगल सीपीयू इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस बिजी वेटिंग waste CPU cycles that some other processes might be able to use productively. वैसे यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, मैं शायद तुम्हें दूसरे सेंस में बता रही थी कि ये जो सिचुएशन है वो रियल टाइम में भी नहीं यूज हो सकता और रियल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में भी नहीं हो सकता, जहाँ पर एक सिंगल CPU है. अगर एक सिंगल CPU जो है वो पूरा टाइम स्पिन लॉक में बिजी रहेगा तो ऑब्वियसली उसके CPU के बहुत ज्यादा साइकिल्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी. But Spinlock has advantages also. Spinlock का क्या एडवांटेज है? Let's for example, एक प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली स्पिन लॉक कर रही है तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा उस प्रोसेस का. वो कंटिन्यूअसली चेक कर रही है वेदर द लॉक इज अवेलेबल, तो उस टाइम पे देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट स्विच बीइंग टेकन प्लेस एंड वी हैव सीन दैट कॉन्टेक्स्ट स्विच इज अ प्योर ओवरहेड. इट टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. सो जब हमको लॉक को हेल्ड करना होता है छोटे टाइम के लिए, अगर लॉक बहुत छोटे से टाइम के लिए है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच की बजाय प्रोसेस अगर उसी पे लूप करती रहती है तो वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है. देखो, एक ऑप्शन ये है कि अगर प्रोसेस बहुत देर तक स्पिन लॉक कर रही है, स्पिन लॉकिंग चलती जा रही है, तो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच करवा दिया जाए. ये कहना चाहिए सीपीयू किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे. बट ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट स्विच इज अ प्योर ओवरहेड. जितनी देर में प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस के कंटेक्स्ट को सेव करेगा और दूसरी प्रोसेस के कंटेक्स्ट को रीलोड करेगा, अगर इतनी ही देर में स्पिन लॉक खत्म हो रहा है, देन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विच. इफ द स्पिन लॉक इज टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ टाइम, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, देन प्रोबेबली द स्पिन लॉक्स आर यूजफुल. ठीक है, देन द स्पिन लॉक्स आर यूजफुल. नेक्स्ट वी हैव इज द सीमाफोर्स. Semaphore is a more robust tool for the synchronization. अगर एकदम से आपसे कोई पूछता है what are semaphores, तो semaphores basically आपका synchronization tool है. आपके प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करवाने के लिए it is a very important synchronization tool and
it uses an integer variable s and it defines two atomic indivisible operations P and V. P stands for proberon and V stands for verogen. यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बट आप बुक को देखोगे तो ये डच वर्ड हैं दोनों के दोनों. P stands for proberon and V stands for verogen. P stands for proberon एंड V stands for वेरोगेन. प्रोबेरन का क्या मतलब होता है? टेस्ट करना. और वेरोगेन का क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंट करना. तो अभी हम यहाँ पे अपने P और V के कोड में देखेंगे कि टेस्ट करने में क्या हो रहा है और इंक्रीमेंट वाले कोड में क्या हो रहा है. पर बेसिकली अभी मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है, सीमाफोर इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल टू manage the critical section problem, and it is here we use an integer variable which provides the synchronization. Here we use two atomic indivisible operations P and V, और यहाँ पर P का क्या मतलब होता है? टेस्ट, और V का मतलब होता है इंक्रीमेंट. Whenever a process wants to enter the critical section, वो सारी की सारी प्रोसेसेस किस में होती हैं? वो वेट में होती हैं, और बाकी सारी प्रोसेसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर चुकी होती हैं वो सिग्नल कर देती हैं. सो यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करो कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से निकल चुकी है और जो सिग्नल कर रही है वो S++ कर रही है. सो दैट मीन्स अगर मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ सो इसका मतलब रिसोर्स इज फ्री. अगर मैं इंक्रीमेंट कर रही हूं सो दैट मीन्स रिसोर्स इज फ्री. और अगर जैसे ही इंक्रीमेंट हो जाता है, रिसोर्स फ्री होता है, तो कोई एक प्रोसेस जिसको उस टाइम पे सीपीयू मिला होगा वो एस की वैल्यू को चेक करेगी. अगर एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स रिसोर्स बिजी चल रहा होगा. ये वैसे ही मान के चलो जैसे हमने आई और जे को कल सोचा था इंटरलीव फैशन में दोनों पैरेलल में चल रही हैं. तो ये एक प्रोसेस का वेट का कोड ध्यान में रखो, दूसरी प्रोसेस का सिग्नल का कोड ध्यान में रखो. एक प्रोसेस जो है जो एस को कंटिन्यूअसली चेक करती जा रही है, वेदर s is less than equal to 0, s is less than equal to 2, less than equal to 0, to do nothing, busy waiting, do nothing. ठीक है. जैसे ही किसी एक प्रोसेस ने सिग्नल प्लस प्लस किया होगा, सिग्नल इंक्रीमेंट हो गया, सॉरी एस इंक्रीमेंट हो गया, सीमाफोर इनिशियलाइजेशन वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट हो गया. जैसे वो इंक्रीमेंट हुआ होगा तो ये वाली जो आपकी जो कंडीशन जो है एस इज लेस देन इक्वल टू 0 ये फॉल्स हो गई, एंड दैट प्रोसेस विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, बट बिफोर एंटरिंग इट विल डू एस माइनस माइनस. एस माइनस माइनस करते ही उसने क्या बताया? यस द रिसोर्स इज अगेन बिजी. और अगर अब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है वो एस को वेरीफाई करेगी और एस उसको फिर से लेस देन इक्वल टू या 0 मिलेगा. ठीक है. सो बेसिकली दीज आर द टू एटॉमिक indivisible operations, wait and signal. The processes who wants to enter the critical section, they wait in this code where we have used a synchronization variable. Variable की value अगर less than equal to 0 है that means the resource is occupied. अगर उसकी value increment हो जाती है तो that means the resource is free. So any process before leaving it increments the value of signal semaphore variable, and the process who wants to access to the semaphore variable वो उसकी value को test करते रहते हैं, and if this value is less than equal to 0 that means the resource is occupied. जैसे किसी एक प्रोसेस को मिल जाता है तो वो उसकी वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा so as to indicate yes the resource is occupied now. कितने बच्चों को ये पूरी बात समझ में आ गई? रीड दिस लाइन्स. ये वाली जो लाइन्स है इनको पढ़ोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को फटाफट से पढ़ो और मुझे बताओ.
ठीक था? Yes, ma'am. Now you may ask, ma'am, semaphore is just the same as lock. So what I'll say is कि yes, the binary semaphore means a variable s which can take only two values 0 and 1. A binary semaphore is same as mutex lock. But we have the concept of counting semaphore which can range from an unrestricted domain of values. Binary semaphore can take only two values, but counting semaphore can take any range of values, and it depends upon the number of instances of a resource. Let's for example, if the resource has 3 instances, so the counting semaphore can take the value of 3, 2, 1 and 0. Let's for example take this way. अगर 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं और एक प्रोसेस आती है जिसको जिसको रिसोर्स चाहिए, तो वो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू को क्या करेगी? अभी हमने क्या देखा था, जब अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो उसकी वैल्यू को टेस्ट करेगी और लास्ट में क्या कर देगी? डिक्रीमेंट कर देगी। डिक्रीमेंट करेगी। डिक्रीमेंट के मतलब क्या हो गया? 3 था अभी, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। एक और प्रोसेस को सीमाफोर चाहिए था, तो उसने फिर से ये अपना वेट वाला कोड को एग्जीक्यूट किया और उसकी वैल्यू को फर्दर डिक्रीमेंट करके 1 कर दिया। दैट मीन्स 1 इंस्टेंस इज स्टिल अवेलेबल। तीसरी प्रोसेस आई जिसने फर्दर उसको सीमाफोर को यूज करना था, उसने वैल्यू चेक करी, क्या एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं था, तो उसने सीमाफोर वेरिएबल को क्या कर दिया? फर्दर डिक्रीमेंट कर दिया। नाउ द 3 की इंस्टेंसेस जो हमने ली हुई थी उस पर्टिकुलर सीमाफोर वेरिएबल की, वो रिसोर्स की जितनी भी इंस्टेंसेस थी, वो सारी की सारी इंस्टेंसेस जो है वो यूज हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट टाइम अब कोई प्रोसेस आती है तो एस की वैल्यू को चेक करेगी, क्या एस की वैल्यू 0 या उससे कम है, या 0 या उससे कम वाली भी मैं स्टेट बताती हूँ। 0 या उससे कम है, अगर 0 या उससे कम होती है तो busy waiting. Since all the 3 instances of a resource were occupied, so the counting semaphore can take the value of 3, 2, 1, 0. और कई बारी हम अपने ये जो सीमाफोर जो होते हैं इनको इस तरह से भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपकी एक क्यू मेंटेन होती है। देखो, सीमाफोर इज जस्ट लाइक अ सिंक्रोनाइजेशन टूल या सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल जो कि किसी रिसोर्स के लिए है। याद है हमने लिंक लिस्ट की बात की थी, हमने देखा था कि जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन डिवाइसेस के लिए भी एक क्यू मेंटेन होती है। इसी तरह से सीमाफोर के लिए भी एक क्यू मेंटेन करी जा सकती है। समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। लेट्स से 3, 2, 1 वाले जो थे वो तीनों के तीनों इंस्टेंसेस जो हैं वो यूज हो गए। अब जो भी प्रोसेस आएगी वो उस सीमाफोर की वेटिंग क्यू में चली जाएगी। पहली प्रोसेस आई जो उसको वेट करने की जरूरत थी, उसको सीमाफोर की वैल्यू क्या मिल गई? -1। दूसरी आई, उसको मिल गई -2। तीसरी आई, उसको मिल गई -3। नेक्स्ट आई, उसको मिल गई -4। सो द प्रोसेसेस हु वांट्स टू एक्सेस द सीमाफोर वेरिएबल एंड वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, वो सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं वो एक सीमाफोर में लाइन में क्यू में लगी हुई हैं। सो काउंटिंग सीमाफोर मतलब यहाँ पर मैंने क्या बोला है? काउंटिंग सीमाफोर जहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन में जा सकती हैं। 10 प्रोसेसेस उस पर्टिकुलर सीमाफोर का वेट कर रही हैं, सो वैल्यू विल बी -1 से लेके -10 तक हो जाएंगी। ठीक है, जबकि बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ 0 और 1 होती है। तभी आप यहाँ पर चेक करो, मैं चेक कर रही हूँ कि क्या एस की करंट वैल्यू जो है वो क्या इक्वल टू 0 या हो सकता है लेस देन 0 चल रही है। अगर एक प्रोसेस जो थी उसने चेक किया सीमाफोर की वैल्यू -5 थी, तो वो अपने कोड में उसकी वैल्यू -6 करके बैठ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, वो चेक करेगी सीमाफोर के वेरिएबल की वैल्यू, अगर उसे -6 मिल रही है करंट वैल्यू, ग्लोबल वैल्यू, तो वो -7 करके बैठ जाएगी। सो दिस इज द वे हियर इट इज रिटन, काउंटिंग सीमाफोर कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, द वैल्यू ऑफ द बाइनरी सीमाफोर कैन रेंज फ्रॉम 0 and 1. सो बाइनरी सीमाफोर्स आर जस्ट सेम टू द म्यूटेक्स। और यहाँ पर मुझे ये बताना था दैट ये जो आपकी जो इसकी वैल्यू होती है, काउंटिंग सीमाफोर की जो वैल्यू होती है, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल। ठीक है, अब ये एक छोटा सा स्निपेट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ोगे। P1
is the piece of P1 is the process which has one statement S1. P2 is the process which has a statement S2, and the requirement is that S2 should be executed only after S1 has completed. क्या बोला है मैंने? आपकी दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2. P1 में एक स्टेटमेंट है S1 और P2 में एक स्टेटमेंट है S2, और मेरी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट ये है कि S2 जो है वो आपकी तब होनी चाहिए ओनली व्हेन we require that S2 is executed only after S1 has completed. So जब S1 complete हो जाएगा तब ही S2 जो है वो चलना चाहिए. इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? यूजिंग सीमाफोर. आपकी स्टेटमेंट S1 थी. S1 के बाद आपने एक वेरिएबल को सिग्नल कर दिया. सिंक इज द सीमाफोर वेरिएबल. इंस्टेड ऑफ S मैंने सीमाफोर वेरिएबल का नाम ले लिया है सिंक. और P2 के अंदर क्या एक मैंने लाइन इंक्लूड करी है? S2 से पहले मैंने वेट सिंक वाली लाइन को इंक्लूड किया है. मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ. मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि जब तक S1 खत्म नहीं हो जाता S2 नहीं चलना चाहिए. तो मैंने एक सीमाफोर वेरिएबल ले लिया और मैंने उसको S1 के बाद लगाया, और दूसरे प्रोसेस के अंदर मैंने S2 से पहले वेट लगाया. तो इन केस अगर प्रोसेस का कंट्रोल P2 वाली प्रोसेस के पास जाता भी है तो वो वेट सिग्नल करेगा. वेट सिग्नल तब तक चलेगा जब तक सिग्नल वेट सिंक करेगा, जब तक उसको सिग्नल सिंक से नहीं मिलेगा. सिग्नल सिंक कब देगा? जब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के बाद पहले आपका S1 एग्जीक्यूट होगा, फिर सिग्नल होगा. जैसे ही सिग्नल मिल जाएगा तो उसके बाद वेट को एग्जीक्यूट होगा, और वेट के बाद आपका S2 एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. इससे रिलेटेड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. मुझे वो ढूंढना पड़ेगा. जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट मेरे को अगर क्वेश्चन मिलता है तो वो क्वेश्चन आपसे दिखाना चाहती हूँ. विद दिस वी आर थ्रू विद द चैप्टर. आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर. हाफ एन आवर इज अवेलेबल. सो मैं एक दो क्वेश्चंस देख लेती हूँ अगर मुझे मिलते हैं तो. Okay, read this question. Read this question. At a particular type of computation, the value of counting semaphore is 7. ठीक है. Then 5 wait operations and 3 signal operations were completed. 7 चल रही थी. 5 वेट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए गए. वेट ऑपरेशंस परफॉर्म होने पे क्या होता है? काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई होगी. तो 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2. तो दैट मीन्स 5 वेट ऑपरेशंस के बाद सीमाफोर की वैल्यू कितनी आ गई होगी? 2. और 3 सिग्नल ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए. 3 सिग्नल ऑपरेशंस के बाद सीमाफोर की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट हो गई होगी? 3 टाइम्स इंक्रीमेंट. सो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. और पूछा क्या हुआ है? डिटरमाइन द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द सीमाफोर. सो रिजल्टेंट वैल्यू 5 वेट ऑपरेशंस और 3 सिग्नल ऑपरेशंस के बाद सीमाफोर की क्या वैल्यू होगी? सीमाफोर की वैल्यू 5. और आपको हर उसमें एग्जीक्यूशन स्टेप पे दिखाना था कि क्या होगा. 5 वेट लिखोगे, डिक्रीमेंट करके दिखाओगे. 3 सिग्नल लिखोगे, इंक्रीमेंट करके दिखाओगे. ठीक था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was another question. ये वाला तो शायद मैं इतना शायद नहीं देख रही थी. There was another question. अगर मुझे मिलता है तो
वो अच्छा क्वेश्चन था। Okay, look at this question. Consider the following code fragment executed by a process of PID 1055. Write the output. अब PID तुमने देख लिया 1055 है इस प्रोसेस का. Write the output of ABCD. ABCD का आउटपुट बताना है. I'm just giving you a minute और उसके बाद एक एक करके मैं पूछूंगी ABCD की क्या वैल्यूज हैं, आप अपने आप देखेंगे. हाँ जी, क्या वैल्यू होगी ए की? मैम 10. बी? मैम 10. मैम B is also PID of 10. parent. मैम 10. No मैम PID of parent. मैम 1055. 1055. C? मैम 0. मैम 0. D? मैम D1055. मैम 1055. 1055. ठीक है, चलो लेट मी लुक फॉर अनदर क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो. ये पीटरसन एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, जो कल हमने एल्गोरिथम 3 देखी थी. मैं और स्नेहा है. हाँ, मेरी भी नेक्स्ट वीक क्लास है. कंपाइल रिजल्ट का कोई फॉर्मेट है? कंपाइल रिजल्ट भी क्या सबके पास है क्या? तो कंचन मेरे साथ भी शेयर करती, क्योंकि मैं DIC नहीं थी तो मेरे पास भी था, तो जो भी मुझे फॉरवर्ड. अच्छा, अच्छा, ठीक है. तो कंपाइल रिजल्ट किसका? जो सेकेंड ईयर अभी पास आउट हो, सेकेंड ईयर में जो आए हैं बच्चे अभी, जो थर्ड ईयर में आ चुके हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है.
आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बारी स्नेहा से भी मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, डन। हाँ ओके, चल, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, ठीक था, देख लिया आपने? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आप पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? मैम पी की वैल्यू। पी की वैल्यू, और पी की वैल्यू आपको वो स्निपेट में मिल जाएगी जो मैंने आपके साथ कल शेयर Yes, किया था, ma'am. जो आपकी बुक में भी कोड दिया हुआ है। Yes, जो मैं ma'am. क्वेश्चन ढूंढ रही थी ना, सरप्राइजिंगली वो मुझे क्वेश्चन ना मिल नहीं रहा बच्चे। और उस क्वेश्चन में पता है क्या था, जैसे अभी मैंने आपको ये 2 प्रोसेसेस का दिखाया है ना, लेट मी शो यू द कोड। ये मैंने 2 प्रोसेसेस का दिखाया है कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन का क्या ऑर्डर होना चाहिए। उस क्वेश्चन में ये था कि अपनी कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करो, P1, P2, P3। फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लीजिए। देयर आर 3 प्रोसेसेस, P1, P2 एंड P3। और आपकी पहले प्रोसेस P1, P2, P3 में स्टेटमेंट है S1, S2, S3, S1, S2, S3। और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर ये है कि पहले S3 चलना चाहिए, फिर S1 चलना चाहिए, फिर S2 चलना चाहिए। पहले S3 चलना चाहिए, फिर S1 चलना चाहिए, फिर S2 चलना चाहिए। तो अब आप कैसे वेट और सिग्नल को लगाओगे? थिंक फॉर अ मिनट, लुक एट द कोड विच इज देयर ऑन माई स्क्रीन। उस कोड को देखो और फिर मुझे बताओ कैसे देखोगी, कैसे लगाओगे उसको। हाँ जी, बताइए कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या ऑर्डर है, पहले S3 होनी चाहिए, फिर S1 होनी चाहिए, फिर S2 होनी चाहिए। अच्छा, इट्स अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया है किसका होना चाहिए, किसके बाद क्या आएगा, बस मुझे वही वेट और सिग्नल लगाने हैं तीनों के स्निपेट में। मैम मे आई आंसर? यस, हु इज द वन? मैम मैम जानवी। जानवी बताइए बेटा। मैम सबसे पहले प्रोसेस P3 में S3 जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर सिग्नल में हम लोग सिंक वेरिएबल पास करेंगे, Right. एंड देन वेट में सिंक वेरिएबल पास करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस इतना कोड ही होगा। जो P3 है उसके अंदर सिर्फ सिग्नल सिंक होगा, फिर उसके बाद ma'am. क्या होगा? मैम देन प्रोसेस उसके बाद आपका प्रोसेस P1 का कोड दिखाओगे आप। प्रोसेस P1 के P1 कोड में मैम वेट सिंक करेंगी एंड मैम उसके बाद हम S1 लेंगे क्योंकि हमें S1 को एग्जीक्यूट करना है। इन प्रोसेस हमारे Then P2 take में some other semaphore variable. Now एक आपने सिंक ले लिया, दूसरा सिंक 1 ले लेंगे। यस मैम, तो फिर हमारा जो है इन प्रोसेस P2 में हमारा S2 को हम सिग्नल दे देंगे सिंक 1 को एंड देन मैम उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। बस कुछ भी नहीं करना, बस तीनों प्रोसेसेस के बीच में ये ऑर्डर दिखा देना था, ठीक है? अच्छा,
ये पीस ऑफ कोड देखिए और मुझे बताइए, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर क्रिएटेड इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम? Then मैम 10. मैम 60. मैम 32. कितना बेटा? मैम 32. 32 मैम 32. ठीक है, अच्छा। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन विच आई वाज लुकिंग फॉर। ये तो शायद बुक का ही है, पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। ये तो सिंपल बुक का ही है जो आपको Yes, मैंने ma'am. अभी Yes, ma'am. समझाया Exactly the था। same. एग्जैक्टली द Yes, सेम, ma'am. राइट। और कोई न्यूमेरिकल है जो करवाया हुआ हो अभी? आई थिंक और नहीं है। डन। आपको क्वेश्चन पेपर्स मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगी सारे के सारे। यू प्लीज स्टार्ट लुकिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर्स। द मोमेंट वील बी थ्रू विद चैप्टर नंबर 6 and 7 वील स्टार्ट अ क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन पेपर्स। आप वो देख के आएंगे और उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए होते हैं उनको भी एक बार ही देखेंगे, ठीक है? लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। Yes, ma'am.